Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the next sub-topic of given electrophilic substitution reactions in the halogens. हमने इससे पहले देखा तीन रिएक्शन बेटा. पहली रिएक्शन देखा एसिड रिएक्शन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी हमने. तो वो तीन रिएक्शन हमने कल फिनिश किया था. जिसमें पहली रिएक्शन का नेम क्या था? फर्स्ट में डिस्कस किया था क्लोरिनेशन और हेलोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन. Second, we take the what? Nitraceous is addition of nitro group. Clear? Now third, we take the what? Sulfonation, addition of sulfonic group. Clear? So today we discuss the fourth or last chemical reactions of halogens in which the acid reaction is take place. Acid called as the electrophilic substitution reaction. So number fourth reaction is called as what here? Friedel-Crafts reaction. The Friedel-Crafts is the name of scientist. He gave the reaction. This is why it's called as Friedel-Crafts reaction. The Friedel-Crafts have two scientists. He give the two different types of chemical reaction. It means first called as the alkylation and second is called as acylation. It's clear? Now first of all, what is alkylation? So addition of alkyl group. Addition of R called as alkyl group called as alkylation. The reaction in which the addition of alkyl group is called as alkylation. Clear? It means we take the R is the alkyl group and this R replaced by CH3. This R atom is replaced by CH3. It is called as the methylation. Clear? Addition of R means any reaction called as alkylation or R replaced by CH3 is called as the addition of methyl group called as the methylation. Alkylation, methylation both are same. So in the Friedel-Crafts reaction, first reaction is called as alkylation or methylation. Now we take the reaction. So then the chlorobenzene or it is called as the haloarenes or what second name is called as arene halide or chloride is a react with methyl chloride. It is called as what here? It is called as a methyl chloride. It is called what here? Chlorobenzene. So when a chlorobenzene, two molecule of chlorobenzene is reacting with two molecule of methyl chloride. This reaction take place especially one types of acid or level acid. It is called as the anhydrous AlCl3. In this reaction क्या करेंगे हम बेटा? AlCl3 का यूज करें एज अ कैटलिस्ट. ठीक है? तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा? टू मॉलिक्यूल हमने क्लोरोबेंजीन के लिया, टू मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड के लिए उसको रिएक्शन कैरी ऑन करना है. ये रिएक्शन कौन सी है? एसिड टाइप की रिएक्शन. एसिड कॉल्ड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है? नाउ इन दिस रिएक्शन द वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन, जैसे इससे पहले नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा, उस सेम टाइप की रिएक्शन है. ऑर्थो का एक्स रिप्लेस करेंगे पहले मॉलिक्यूल से और दूसरे मॉलिक्यूल में पैरा का एक्स रिप्लेस करेंगे सेकंड मॉलिक्यूल से. ठीक है? तो सेम ये द वन मॉलिक्यूल हम भी टेक टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन या टू मॉलिक्यूल लिया. एक मॉलिक्यूल से क्या किया? एच को रिप्लेस किया कहां से? ऑर्थो पोजीशन से कार्बन नंबर 1 से. कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5. कार्बन नंबर 1 से एच को रिप्लेस किया तो उसको रिप्लेस किया कैसे? एक CH3 से. हमने CH3 2 CH3Cl यानी यहां पे हमने क्या किया? 2 मिथाइल क्लोराइड लिया. ठीक है? तो यहां पे एक CH3 कैसे रिप्लेस किया? तो क्या बन गया? 2 क्लोरो. हियर कार्बन नंबर फर्स्ट, हियर सेकंड. तो नेम कॉल्ड व्हाट हियर? 2 क्लोरो. 2 chloro what any ring attached to CH3 it is called as methyl benzene और special name is called as toluene. अगर बेंजीन पर CH3 अटैच है तो उसका कॉमन नेम आता है मिथाइल बेंजीन और अगर वही CH3 को स्पेशल नेम देते हैं तो उसका नेम क्या आता है? टोल्यूइन. टोल्यूइन कब आता है बेटा? जब CH3 बेंजीन पर रिएक्ट हो तो इट इज कॉल्ड एज अ टोल्यूइन एंड दिस 2 chloro what टोल्यूइन नेम फर्स्ट. नाउ सेकंड मॉलिक्यूल पे टेक दो मॉलिक्यूल लिया हमने यहां पे. तो सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे और सेकंड मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो फोर्थ कार्बन के H को रिप्लेस करेंगे सेकंड मॉलिक्यूल कैसे? CH3 से. तो यहां पर CH3 आ गया. यानी इसमें क्या किया? H को रिप्लेस किया पहले कार्बन नंबर फर्स्ट से बाद में फोर्थ से. तो कार्बन नंबर एक फर्स्ट से फर्स्ट H को रिप्लेस किया CH3 से तो क्या बन गया प्रोडक्ट इसका? 2 क्लोरो वाट टोल्यूइन. और फिर बाद में सेकंड मॉलिक्यूल के क्लोरोबेंजीन के 4 नंबर के
कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, वहां CH3 ऐड किया, तो नेम क्या बन गया इसका? व्हाट इज द 1 2 3 4 4 कौन है? 4 क्लोरोक्लोरीन। एंड रिमेनिंग हाउ मेनी atom will be goes as byproduct? So how many Cl? 2 Cl and 2 HCl will goes as 2 HCl. यानी जो रिएक्शन कर देगा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, वो सेम रिएक्शन है, ओनली चेंज व्हाट हियर नेम विद अ रिएजेंट। क्लियर है? कल हमने देखा था नाइट्रेशन इसमें NO2 ऐड किया था, ठीक है, सल्फोनेशन में SO3 ऐड किया था, हेलोजिनेशन में Br ऐड किया था, और हमने यहां पे फर्स्ट में क्या देखा? हाउ टू एडेड द व्हाट अल्किल ग्रुप। यानी ये जो रिएक्शन है वो दो किसी के अलग रिएक्शन होती है। पहले इसका नेम जो है वो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। पहले रिएक्शन में क्या किया? मिथिल ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड मिथाइलेशन और अल्काइलेशन। वी गेट टू प्रोडक्ट। क्लियर? नाउ सेकंड बी हियर बोथ आर इज अ एग्जांपल ऑफ फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। नाउ सेकंड असैलेशन। असैलेशन इज एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। इट मींस CH3C double bond O group is called as acyl group. So any reaction in which the acyl group is added called as acylation, or it is also called as acetylation. But here because we use a reagent as acetyl chloride, what? It is called as acylation. जो A reaction इसमें क्या यूज करें? मिथिल क्लोराइड, it is called as methylation. ठीक है? तो ये रिएक्शन में सेम है। जो रिएक्शन पहले है 2 क्लोरोबेंजीन है, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के लिया, उसको रिएक्ट किया 2 मॉलिक्यूल के एसिटिल क्लोराइड से, इट इज कॉल्ड एज द एसिटिल क्लोराइड। नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट हियर? क्लोरोबेंजीन। सो 2 मॉलिक्यूल of chlorobenzene is react to 2 molecule of acetyl chloride in presence of same catalyst called as the anhydrous AlCl3. Now what we get? same reaction जो A रिएक्शन देखा था, पहले H के पहले मॉलिक्यूल पहले फर्स्ट क्लोरोबेंजीन के H को रिप्लेस करेंगे कहां से? कार्बन का फर्स्ट से, वहां क्या रिएक्ट करेंगे? फर्स्ट ग्रुप ऑफ एसिटिल, तो यहां पे रिएक्ट किया फर्स्ट वाले पे, फिर इसको दोबारा का रिएक्ट किया फोर्थ पर, यहां पर रिएक्शन कार्बन नंबर 1 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड देन सिक्स, और यहां से इसको रिप्लेस किया। सेम या बाकी रिएक्शन फर्स्ट मॉलिक्यूल है क्लोरोबेंजीन का, उसको H रिप्लेस किया कार्बन नंबर कैसे? सेकंड से, तो यहां पर क्या मिला? यहां मिला CO। रिएक्शन कौन सी है? असैलेशन, एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप को ऐड करना है, कॉल्ड असैलेशन। तो व्हाट वी गेट? इसको नेम देंगे हम लोग, इसका नेम देंगे 1 2 1 क्लोरो एंड बेंजीन अटैच टू COCH3 ग्रुप। अगर बेंजीन को COCH3 ग्रुप अटैच कर रहा है उसका नाम आता है एसीटोफिनोन, यानी आता है एसीटोफिनोन। और अगर ये CH3 से रिप्लेस हो रहा है बेंजीन से, तो तब उसका नाम क्या आएगा? बेंजोफिनोन। फिनॉन मतलब व्हाट? फिन कॉल्ड एज अ बेंजीन, ऑन कॉल्ड एज कीटोन, इट इज कॉल्ड एज बेंजीन एंड CO ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटोन। कीटोन मींस सफिक्स ON, उसका नेम क्या आता है? एसीटोफिनोन। फिनॉन इज अ ऑन इज अ सफिक्स ऑफ व्हाट? एसीटोन और कीटोन। क्लियर? नाउ सेम रिएक्शन सेकंड मॉलिक्यूल का CH3CH4 से, और वहां CH3CO को रिएक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? बेंजीन Cl एज इट इज COCH3। अभी कार्बन नंबर कितना आएगा? ये आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो फोर्थ क्लोरो एंड बेंजीन अटैच्ड टू COCH3 कॉल्ड एज द एसीटोफिनोन। ठीक है? सिंपल रिएक्शन है बेटा, लास्ट वाला रिएक्शन के लिए। इसलिए क्या देखा हमने? टॉपिक फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। वो रिएक्शंस कैसी होती है? फर्स्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन, सिर्फ क्या किया? क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिया और उस पर रिएक्ट किया 2 मॉलिक्यूल ऑफ मिथिल क्लोराइड, क्योंकि मिथाइलेशन अल्काइलेशन होती है। तो पहला मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के H को रिप्लेस किया, वहां पर CH3 लगाया, तो प्रोडक्ट ये बन गया हमारा। फिर सेकंड मॉलिक्यूल लिया, फिर CH3 लगाया, फिर सेकंड अपना प्रोडक्ट बन गया, और 2 HCl यहां पे लॉस हो गया। सेम रिएक्शन असैलेशन, CH3CO ग्रुप को ऐड करना है, फर्स्ट क्लोरोबेंजीन के H को रिप्लेस किया CH3CO Cl से, तो प्रोडक्ट ये बन गया हमारा। फिर सेकंड मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन लिया, उसके फोर्थ कार्बन से H को रिप्लेस किया और CH3CO को अटैच किया, तो ये बन गया एसीटोफिनोन। ठीक है? सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन्स और अरील हैलाइड। यहां पर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। ठीक है? नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक हियर, व्हाट? यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड। यानी व्हाट इज पॉलीहैलोजन कंपाउंड? The compounds contain a different
more than one halogen called as polyhalogen compound. For example, CHCl2. The CHCl2, how many Cl? 2 Cl is called as a polyhalogen compound. For example, CH2Cl2. It contains 2 Cl. More than one Cl called as polyhalogen. What is monohalogen? Means any compound which contains only one halogen called as monohalogen. And any compound which contains more than one halogen present the compound is called as a polyhalogen compound. So CH3Cl2 is the example of polyhalogen compound. Polyhalogen compound. ठीक है. क्वेश्चन हमारा यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड, यानी कि ये जो कंपाउंड में यूज किया है उसका इफेक्ट क्या है. एनवायरमेंटल इफेक्ट कॉल्ड एज द साइड इफेक्ट. अगर आपको पता है कोई भी चीज अगर ज्यादा यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऐसी मेडिसिन है पैरासिटामोल, ठीक है, वो नेचुरली बुखार के लिए यूज करते हैं, टेम्परेचर को फीवर को कम करने के लिए, ठीक है. तो फीवर अगर बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो यूज करते हैं, लेकिन अगर उसका हैबिचुअल हो गया वो मेडिसिन का, तो इट कॉजेज अ डिफरेंट व्हाट डिजीजेस. ठीक है, इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट. तो इसमें पहले देखेंगे कि जो पॉलीहैलोजन कंपाउंड है, फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करें हम लोग. डाइक्लोरोमीथेन और मिथिल क्लोराइड और मिथिलीन क्लोराइड. क्या होता है लोग? मिथिलीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड CH2Cl2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. तो इसका यूज क्या है? ठीक है, ओके. तो फर्स्ट इट इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड. ओके, इट इज व्हाट? It is a what? It is a colorless volatile liquid. It is a colorless volatile liquid. Clear? It is a colorless volatile liquid and used as solvent. उसका नेचर कैसे है फर्स्ट बेटा? ये volatile liquid होता है और उसका यूज एज अ solvent. What is solvent? The substances which are soluble to solute. It is called as a solvent. It may be a non-polar solvent or polar solvent, जो भी होगा. ठीक है. Second, it is used as propellant in aerosol. Aerosol is a one type of spray जो होता है, ठीक है, different type of spray में इसका यूज करते हैं. इसका मिथिलीन डाइक्लोराइड और डाइक्लोरोमीथेन. क्लियर. नाउ एनवायरमेंटल इफेक्ट और साइड इफेक्ट. अब अगर इसका ज्यादा यूज हुआ, ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज द एनवायरमेंटल इफेक्ट और साइड इफेक्ट. So, if you use a higher amount of a methylene dichloride, it causes dizziness. What? Dizziness called as different types of body dizziness. Clear? Coma, fatigue. थोड़ा सा मतलब अपने में जो तो कमजोरी आ जाना बॉडी में, फैटिक में तो थोड़ा सा क्या बोले बॉडी के तो थोड़ा सा वीकनेस टाइप में आ जाना. ठीक है. नॉसिया, वोमिटिंग वगैरह होती है उससे. नेक्स्ट, हेडेक, ज्यादा अगर यूज हुआ तो हेडेक वगैरह भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, वीकनेस, बॉडी वीकनेस भी हो सकती है इससे. नाउ इट इज कांटेक्ट, इट्स अ स्पेशल साइड इफेक्ट ऑफ अ डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड. इसको याद रखना है स्पेशली. सो इट इज कांटेक्ट टू आई. अगर हमारे आंखों से कांटेक्ट आता है तो इट डैमेज द कॉर्निया. जो हमारे आंख के अंदर जो कॉर्निया है उसको भी डैमेज कर सकता है. It's a very dangerous for eye to contact with eye. It causes the damage the cornea. आया समझ में? तो इसका साइड इफेक्ट. ठीक है. तो ऐसे 5-6 अलग अलग कंपाउंड है पॉलीहैलोजन कंपाउंड जिसका हमको यूज भी देखना है और उसका क्या देखना है, साइड इफेक्ट या एनवायरमेंटल इफेक्ट भी देखना है. और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं. चाहे ये क्वेश्चन हो केमिकल रिएक्शन 2 मार्क्स के लिए आएगा या कोई 4-5 जो पॉलीहैलोजन कंपाउंड है उसमें से एक कंपाउंड तो आता है. ठीक है, ऐसा समझ में. ठीक है. सो पहले क्या स्टार्ट किया हमने बेटा? लास्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ पॉलीहैलोजन haloarenes. We take the word Friedel-Crafts reaction. It have 2 types. First called alkylation, addition of CH3 और R group called alkylation जो हमने ऐड किया. सेकंड मैंने स्टार्ट किया acylation, B के अंदर addition of CH3 CO group called acylation और acetylation. ठीक है. उसके बाद हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था यहाँ पे यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहैलोजन कंपाउंड. यानी व्हाट इज पॉलीहैलोजन कंपाउंड? द कंपाउंड which contain more than one halogen atom. Halogen, how many halogen? 4. FCl-Br. ठीक है. ओके. फिर हमने इससे पहला कंपाउंड को स्टार्ट किया डाइक्लोरोमीथेन और मिथिलीन डाइक्लोराइड, फार्मूला CH2Cl2 है. ठीक है. उसका यूज देखा हमने, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है. ठीक है.
और उसका यूज सॉल्वेंट में करते हैं, एज सॉल्वेंट यूज करते हैं। उसके बाद प्रोपेलेंट को एरेजोल में इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर इसका ज्यादा यूज हुआ तो साइड इफेक्ट क्या होता है, तो कॉजेज डिजीनेस, फैटिग, नॉसिया, हेडेक और वीकनेस, और स्पेशली कॉन्टेक्ट टू आई डैमेज द कोर्निया। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट हियर द केमिकल रिएक्शंस और एसई रिएक्शन इन हेलो ऑरेंज लास्ट टॉपिक। और न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हमने यहाँ पर यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ऑल द पार्ट ऑफ द हेलो ऑरेंज एंड हेलो अल्केन्स फिनिश हुआ। लास्ट टॉपिक जो है हमारे स्टूडेंट का, इसका नाम हुआ यूजेस एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। इसके 4 या 5 कंपाउंड बाकी है, वो हम लोग बाद में लेंगे। ठीक है, जितना भी हो गया आपका उसकी नोट्स प्रिपेयर करो। अब कुछ प्रॉब्लम है तो पर्सनली कांटेक्ट करो। ओके, थैंक यू सो मच।